السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ریاست تلنگانہ میں تلنگانہ کی RTC بسوں میں تقریباً 200 کروڑ خواتین نے مفت سفر کیا ہے۔ تلنگانہ RTC نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔ اب تک تقریباً 200 کروڑ خواتین نے مفت بس سفر کی سہولت سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ تلنگانہ RTC کے مطابق خواتین کے مفت سفر کی جملہ مالیت تقریباً 6,700 کروڑ روپے تک پہنچ چکی ہے۔ تلنگانہ کی اصل اپوزیشن BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی سیاست میں علاقائی جماعتوں کی اہمیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا اور یہی پارٹیاں مستقبل میں عوامی مسائل کو مؤثر طریقے سے حل کرنے کا کردار ادا کریں گی۔ انہوں نے اس بات پر بھی تشویش ظاہر کی ہے کہ ملک میں ایک مضبوط اپوزیشن کی غیر موجودگی جمہوری توازن کو بگاڑ رہی۔ KTR نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران لوک سبھا حلقوں کی حد بندی کے جاری عمل پر بھی شدید تنقید کی اور انتباہ دیا کہ ہندی کو ملک پر زبردستی تھوپنے کی کوششیں ہندوستان کی لسانی و ثقافتی ہم آہنگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام زبانوں کو مساوی عزت دی جانی چاہیے۔ پوڈ کاسٹ کے دوران KTR نے خود پر لگنے والے الزامات جن میں بدعنوانی، منشیات اور فون ٹیپنگ جیسے معاملات شامل ہیں ان پر بھی کھل کر بات کی۔ انہوں نے خود کو شفاف سیاست دان قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان الزامات کے بجائے عوامی خدمت اور حکمرانی پر توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP دھنکر کی جگہ کسی اور کو لا کر بہار انتخابات میں سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی۔ ان باتوں کا اظہار ملو روی نے کیا۔ نائب صدر جگدیپ دھنکر کے اچانک استعفے پر کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ملو روی نے ردعمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے قومی دارالحکومت دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام پیش رفت بہار اسمبلی انتخابات کے پیش نظر انجام دی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق BJP جگدیپ دھنکر کی جگہ کسی اور کو لا کر بہار انتخابات میں سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی۔ اقلیتوں کو ریزرویشن پر BJP BC طبقات کے ساتھ ناانصافی کا الزام لگا رہی۔ آدی سرینواس۔ تلنگانہ حکومت کے وپ آدی سرینواس نے BJP کے صدر رام چندر راؤ پر BC ریزرویشن کی مخالفت کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی BJP صدر کا رویہ BC طبقات کے خلاف ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ رام چندر راؤ ریاست میں BC ریزرویشن کی حمایت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دہلی جا کر اپنے موقف سے انحراف کرتے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری جونیئر کالجوں کو مستحکم کرنے پر خصوصی توجہ مرکوز کی ہے۔ سلسلے میں ریاست بھر کے 430 کالجوں میں CCTV کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں جن کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ ان کیمروں کے ذریعے تعلیمی طریقہ کار، لیکچررز کی حاضری کے اوقات اور طلباء کی حاضری پر نظر رکھی جائے گی۔ کیمروں کو انٹرمیڈیٹ بورڈ کے دفتر میں قائم کمانڈ کنٹرول روم سے جوڑا جائے گا جہاں سے کلاسز کے انعقاد کی نگرانی کی جائے گی۔ ہر کلاس روم، لیب اور پرنسپل کے کمرے میں ایک کیمرہ لگایا جائے گا۔ ہر کالج میں کم از کم 10 کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ یہ کیمرے حیدرآباد کے نامپلی میں واقع انٹرمیڈیٹ بورڈ کے دفتر کے کمانڈ کنٹرول سینٹر سے منسلک ہوں گے۔ حیدرآباد میں موجود ماہرین اور حکام تدریس کے انداز کا مشاہدہ کر کے خامیوں کی نشاندہی اور اصلاح کے لیے مشورے دیں گے۔ ٹائم ٹیبل پر عمل آوری جیسے امور کی بھی کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جائے گی۔ اس اقدام سے کالجوں کی سرگرمیوں، خاص طور پر تدریس کے انداز کا براہ راست جائزہ لیا جا سکے گا۔ ماہرین تعلیم کا ماننا ہے کہ اس سے اساتذہ میں جواب دہی کا احساس بڑھے گا اور تعلیم کا معیار بہتر ہوگا۔ آندھرا پردیش کے وجے واڑہ ایئرپورٹ کا نیا انٹیگریٹڈ ٹرمینل جلد ہی عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ آندھرا پردیش کے وجے واڑہ ایئرپورٹ پر زیر تعمیر نیا انٹیگریٹڈ ٹرمینل جلد ہی عوام کے لیے کھولنے والا ہے۔ یہ پروجیکٹ تقریباً 611 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا جا رہا اور اس کی تعمیراتی سرگرمیاں تیز رفتاری سے جاری ہیں۔ نئے ٹرمینل میں 6 ایرو برجز، ایک جدید ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور اور کشادہ روانگی و آمد کے ہالز شامل ہیں۔
रियासत तेलंगाना के जिले वरंगल की सेंट्रल जेल की जगह पर ज़ेर तामीर 24 मंजिला मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रवां साल दिसंबर के आखिर तक तिब्बी खिदमात शुरू होने की तवक्को है। नए अस्पताल की तमाम 24 मंजिलें तिब्बी शोबेजात के लिहाज से मखसूस की गई हैं और हर मंजिल पर मुतल्लिका सहूलियात के लिए दरकार जरूरियात की तफसीली रिपोर्ट रवां महीने के अख्ताम तक पेश करने की हिदायत दी गई। रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ शोबेजात के माहिरीन नई इमारत का दौरा कर रहे हैं और अपने अपने शोबे के लिए दरकार बुनियादी सहूलियात की मनसूबा बंदी में मसरूफ है। ग्राउंड फ्लोर इमरजेंसी, कैजुअलिटी, मेडिकल ICU, RICU, ट्रामा ICU, नौज़ायदा बच्चों की निगहदाश्त, लेबर वार्ड, ICU वार्ड, फार्मेसी, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, मेमोग्राफी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, बुजुर्गों के लिए OP खिदमात, पहली मंजिल ENT, डर्माटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी एंड एंडोस्कोपी, एक्सरे, DSA, डेमो रूम, रोमटोलॉजी, OP खिदमात और दीगर भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला और सरकर्दा फिल्म अदाकार पवन कल्याण ने कहा है कि उन्होंने कभी भी रिकॉर्ड्स के लिए फिल्में नहीं की हैं। उनका मकसद हमेशा बेहतर किरदारों के जरिए नाजरीन से जुड़ना रहा है। पवन कल्याण की अदाकारी वाली फिल्म हरी हर वीर अम्मुलू रवां महीने 24 तारीख को पूरे मुल्क में रिलीज होने जा रही है। इस मौके पर हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में फिल्म की प्री रिलीज तकरीब शानदार अंदाज में मुनक्किद की गई। तेलंगाना के कड़पा जिले की जेल में संगीन बद इंतजामी के इल्जामात के बाद 5 जेल ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल किए गए अफराद में जेलर अप्पारा और डिप्टी सुपरिटेंडेंट कमलाकर के अलावा मजीद 3 जेल वार्डन शामिल हैं। जेल महकमे के डायरेक्टर जनरल ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। इल्जाम है कि ये ओहदेदार रिमांड में मौजूद कैदियों, खासतौर पर सुर्ख संदल की स्मगलिंग में मुलविस अफराद को मोबाइल फोन्स फराहम कर रहे थे। इस शिकायत पर DIG रवि किरण ने जेल में 4 रोज तक तफसीली तहकीकात की। उनकी इब्तदाई रिपोर्ट की बुनियाद पर 5 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दूसरे दिन भी जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का मुतालबा किया जा रहा, जबकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बिहार में जारी वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR पर बहस कराने के लिए नोटिस पेश किए गए। ऐवान की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होनी, लेकिन अपोजिशन के एहतजाज को देखते हुए इस सेशन मुतासिर कांग्रेस के रुकन पार्लिमान मनिकम टैगोर ने लोकसभा में रोल 56 के तहत इल्तवा की तहरीक पेश की, जिसमें बिहार में जारी SIR को जमहूरी हुकूक के लिए शदीद खतरा करार दिया गया। उन्होंने कहा कि सख्त दस्तावेजी तकाजे जैसे पैदाइशी सर्टिफिकेट या पासपोर्ट खासतौर पर दलित अक़लियतों, पसमानदा तबकात और महाजिर मजदूरों समेत लाखों शहरियों को वोट के हक से महरूम कर सकते हैं। टैगोर ने कहा, सीमांचल जैसे खित्तों में वोटर लिस्ट से नाम मनमानी तरीके से हज़फ किए जा रहे, जबकि शदीद बारिश, सैलाब और BLOs की कमी जैसे मसाइल के बावजूद ये अमल नाफिज किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और तमाम रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी करके उनसे इस बारे में अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करने के लिए कहा है कि क्या अदालतें रियासती विधान सभाओं के मंजूर करदा बिलों पर गौर करते वक्त सदर जमहूरिया और गवर्नरों के लिए वक्त की हद और तरीक़ेकार तय कर सकती है। इस मामले पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अदालत उज़्मा से मशावरती राय तलब की थी और उससे 14 सवालात पूछे। चीफ जस्टिस BR गोई और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अतुल S चंद्रकर के मुश्तमिल एक आईनी बेंच ने सदर जमहूरिया की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से मशावरती राय तलब किए जाने के मामले पर समाअत की और इस पर गौर करने के बारे में इत्तफाक जाहिर किया। इस 5 रुकनी बेंच ने इस मामले में मरकज और सभी रियासती सरकारों को नोटिस जारी करने के अलावा अटॉर्नी जनरल R वेंकटरामन से भी इस मामले में कोर्ट की मदद करने को कहा। आईनी बेंच इस मामले की अगली समाअत 29 जुलाई को करेगी।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अगर किसी चीज से सबसे खौफजदा हैं तो वो एप्स्टेन फाइल है। इसमें भी रोज नए नए इंकशाफात हो रहे। अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल में शायद खबर का तनाजिया खत्म नहीं हुआ कि एक और इंकशाफ हुआ है। एक साबिक स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड मॉडल स्टेसी विलियम्स ने डोनाल्ड ट्रंप के जेफरी एप्स्टेन के साथ तवील अरसे से इंकारी ताल्लुकात पर ताजा गम व गुस्से को जन्म दिया। स्टेसी विलियम्स जिन्होंने एप्स्टेन को मुख्तसर तौर पर डेट किया था, चौंका देने वाले इल्जामात के साथ सामने आई है और ये दावा किया है कि ट्रंप ने 1993 के ट्रंप टावर के दौरे के दौरान उनसे छेड़छाड़ की और इस वक्त एप्स्टेन मौजूद था और अमला देख रहा था। एक इंटरव्यू में विलियम्स ने उसने एनकाउंटर के बारे में तफसील से बताया और उन्होंने ट्रंप और एप्स्टेन को बेहतरीन दोस्त करार दिया। ट्रंप का दस्तखत शुदा विलियम्स को दिया गया एक पोस्ट कार्ड इसके बाद से ऑनलाइन वायरल हो गया, जिसने बड़े बड़े पैमाने पर गम व गुस्से को हवा दी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।